स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। ठीक है, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अब इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। Iron and steel industry. Iron and steel industry is a basic industry. The first attempt to make in India started in 1830 AD in Proto-Novo, Tamil Nadu. But this factory failed later. For the first time in India, the iron was successfully produced by the Bengal Iron Works, Kulti, in 1875 AD. In the year 1907, a new factory was established in India by the Tata Iron and Steel Company at Sakchi, Jamshedpur, in which raw iron was produced in the year 1908 and steel was produced in the year 1911. According to World Steel Association data, World Steel in Figures 2021, it is the world's 12th largest in the year 2020 steel company. Tata Steel Group with the annual production capacity of 28.07 million tons. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा हमने? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए बेसिक इंडस्ट्री. द फर्स्ट attempt to make in India started in 1830 AD in Proto-Novo, Tamil Nadu. But this factory failed later. For the first time in India, the iron was successfully produced by the Bengal Iron Works, Kulti, in 1875 AD. In the year 1907, a new factory was established in India by the Tata Iron and Steel Company at Sakchi, Jamshedpur, in which raw iron was produced in the year 1908 and steel was produced in the year 1911. According to World Steel Association data, World Steel in Figures 2021, it is the world's 12th largest in the year 2020 steel company. Tata Steel Group with the annual production capacity of 28.07 million tons. इसके बाद नेक्स्ट है, ये इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स को इंडिकेट किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं बोकारो छत्तीसगढ़ में आयरन और माइंस हैं। यहाँ पर दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बर्नपुर, यहाँ पर भी आयरन और माइंस हैं बर्नपुर में। राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। जमशेदपुर झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़ रीजन में। विशाखापत्तनम इज इन आंध्र प्रदेश। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। उसके बाद भद्रावती रीजन, सालेम रीजन तमिलनाडु का। ये क्या है? मेजर रीजन्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे सब हम, ठीक है। तो सबसे पहले है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, VISL. Vishwesvaraya Iron and Steel Limited, VISL, was established in the year 1923 on the bank of the Bhadravati River, Shimoga district of Karnataka. Raw iron is supplied from Baba Budan Hills to it, while limestone from भांडीगुंडा, ठीक है, भांडीगुंडा. Due to the lack of local supply of coal here, charcoal or wood was used for power, which was received from the Malnad forest area. क्या पढ़ा हमने विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड में कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL was established in the year 1923 on the bank of the Bhadravati River, Shimoga district of Karnataka. Raw iron is supplied from Baba Budan Hills to it, while limestone from Bhandigunda. Due to lack of local supply of coal here, charcoal or wood was used for power, which was received from the Malnad forest area. Since 1989,
It acts as the subsidiary to the Steel Authority of India Limited. It was completely merged in the SAIL in the year 1998. After the independence, during the second five-year plan of India, special emphasis was given on heavy and basic industries, under which Rourkela, Odisha, Bhilai in Chhattisgarh, Durgapur in West Bengal, steel plants were established. राउरकेला राउरकेला स्टील प्लांट जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HLS इज़ लोकेटेड एट सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। राउरकेला स्टील प्लांट और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL is located at Sundargarh district of Odisha. This factory was planted in collaboration with Germany's company Krups and Dimag, ठीक है, क्रुप्स एंड दिमाग ये कंपनी का नाम है। प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड हेयर इन द ईयर 1959. It is located near the deposits of manganese and limestone. Here iron ore is brought from Keonjhar and Kendujhar districts of Odisha. Here iron ore is brought from Keonjhar and Kendujhar district of Odisha. The coking coal is obtained from Bokaro, Jharia and Talcher area of the coal washing station of Kargali, ठीक है, या कारगाली। ये क्या है? द कोकिंग कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोकारो, झरिया एंड तालचर एरिया ऑफ द कोल वॉशिंग स्टेशन ऑफ करगाली या कारगाली। ये क्या है? करगाली एरिया है या कारगाली एरिया है, ठीक है, वॉशिंग स्टेशन है कारगाली का। मैंगनीज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीरमित्रपुर, ठीक है, मैंगनीज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीरमित्रपुर। It gets cheap hydroelectricity from Hirakund easily. Bhilai steel plant has been established with the help of the former Soviet Union in the year 1959 in Bhilai of Durg district of the state of Chhattisgarh on the Kolkata-Mumbai Railroad. Next है Dalli Rajhara iron ore deposit supply iron ore to the Bhilai steel plant. Dalli Rajhara iron ore deposit supply iron ore to the Bhilai steel plant. इसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL दुर्गापुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL दुर्गापुर। Durgapur steel plant was established in the year 1959 with the collaboration of Britain near Asansol in Vardhaman district of West Bengal. This plant obtains iron ore from the Bolni mines of Gua area, coal from the mines of Barakar and Jharia, manganese from Jamda, Keonjhar district, and electricity and water from the Damodar river. Bokaro Steel Limited BSL. Bokaro. This plant is established in the year 1965 with the collaboration of Russia on the confluence of Bokaro and Damodar river in Hazaribagh district of the state of Jharkhand, ठीक है। बोकारो स्टील लिमिटेड प्लांट कहाँ पर है? बोकारो प्लांट वॉज established in the year 1965 with the collaboration of Russia on the confluence of Bokaro and Damodar river in Hazaribagh district of the state of Jharkhand. Next है main minerals required for the iron and steel industry are iron ore, coking coal, manganese, rock phosphate, dolomite, chromium, etc. Due to lack of coking coal in the country, it is imported from Australia. Generally, chromium and nickel are used in making of stainless steel. Both of these, chromium and nickel, are mixed with iron metal along with some quantity of carbon for the manufacturing of stainless steel. Visakhapatnam Steel Plant is India's first steel plant located on coastline steel plant. Iron ore is supplied to this plant from the Belladilla, Chhattisgarh. Iron ore is supplied to this plant from Belladilla, Chhattisgarh. अब हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम एंड निकल। Stainless steel is a metal alloy made up of steel mixed with elements such as chromium, nickel, molybdenum, silicon, aluminium and carbon. Iron mixed with carbon to produce steel is the main component of stainless steel. Iron mixed with carbon to produce steel is the main component of stainless steel. Hence option A, chromium and nickel is the correct answer. Question number 2, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। आंसर हो जाएगा आयरन एंड क्रोमियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव बीन planted along the western coast of India. What is the major reason for this locational shift in this industry? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द occurrence of high grade iron ore deposits in Goa and parts of Madhya Pradesh and the comparative ease of exporting steel from here. Some iron and steel plants have been planted along the western coast of India. The major reasons for the locational shift of this industry are occurrence of high-grade iron ore deposits in Goa and parts of Madhya Pradesh as well as seaports for comparative case of exporting steel and consumption of iron ore in the concerned field for manufacturing. Next है question number 5. In India, the steel production industry requires the import of coking coal. In India, the steel production industry requires the import of coking coal. Iron and steel industry is one of the important industries of India. It requires minerals like iron ore, coking coal, manganese, dolomite, rock phosphate, chromium, etc. In India, coking coal is mainly imported from Australia. Coke is produced by heating coking coal. Coke is produced by heating coking coal. Coking coal is also known as metallurgical coke, metallurgical coal. ठीक है, coking coal is also known as metallurgical coal. Question number 5. In India, the steel production industry requires the import of coking coal. Next है question number 6. The local supply of coal is not available to. इसका आंसर है VSL भद्रावती. The local supply of coal is not available to VSL Bhadravati. VSL Bhadravati is the only iron and steel plant situated outside the coal producing area. The absence of coal was met by the use of charcoal derived from firewood obtained from state forest. The plant switched over to electric furnaces after the completion of Mahatma Gandhi hydel power stations. Question number 6 क्या है? The local supply of coal is not available to. The local supply of coal is not available to VSL Bhadravati. VSL Bhadravati is the only iron and steel plant situated outside the coal producing area. The absence of coal was met by the use of charcoal derived from firewood obtained from state forest. The plant switched over to electric furnaces after the completion of Mahatma Gandhi hydel power stations. Next question है question number 7. Which one of the following iron and steel plant is located neither on iron ore area nor on coal field but approximately at the midway between them? इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती. Bhadravati has two major factories that take up a large part of the city. The Vishvesvaraya Iron and Steel Plant Factory started by Shri M. Vishvesvaraya and the Mysore Paper Mills Factory. The steel factory is located neither on an iron ore area nor on coal field. Which one of the following iron and steel plant is located neither on iron ore area nor on coal field?
but approximately at the midway between them. इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती. Bhadravati has two major factories that take up a large part of the city. The Vishvesvaraya Iron and Steel Plant Factory, started by Shri M. Vishvesvaraya, and the Mysore Paper Mills Factory. The steel factory is located neither on an iron ore area nor on an coal field. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. टिस्को TISCO टिस्को प्लांट इज लोकेटेड नियर. आंसर हो जाएगा टाटानगर. टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. टिस्को इज प्राइम स्टील कंपनी ऑफ इंडिया. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1907. कहाँ पर है? टिस्को प्लांट इज लोकेटेड नियर टाटानगर. Tisco Tata Iron and Steel Company Limited is prime steel company of India. It was established in 1907. Next question है क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following statement is not correct? इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. पहला है राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप विद द सोवियत यूनियन कोलैबोरेशन. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत हो जाएगा. इसका करेक्ट क्या होगा? राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी, नॉट द सोवियत यूनियन. हेंस द स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग. ठीक है. राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है. नॉट द सोवियत यूनियन. इसीलिए क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अदर स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन द ऑप्शंस आर करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट क्या है जो सही होगा? सही कैसे होगा? राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी के कोलैबोरेशन से सेटअप किया गया था. ठीक है. जबकि ए में क्या लिखा है? सोवियत यूनियन कोलैबोरेशन. इसीलिए ए रॉन्ग होगा. किसके कोलैबोरेशन से? जर्मनी के कोलैबोरेशन से सेटअप हुआ था राउरकेला स्टील प्लांट का. ठीक है. बाकी जो ऑप्शंस हैं बी सी डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं. तो बी को भी पढ़ लेते हैं. सलेम स्टील प्लांट इज़ ए प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया. जो सलेम स्टील प्लांट है वहाँ पर क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन होता है. सलेम स्टील प्लांट इज़ ए प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया. सी ऑप्शन है महाराष्ट्र एल्क्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड. क्या है? एल्क्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है. ये क्या है? महाराष्ट्र की एल्क्ट्रोस्मेल्ट. ये क्या है? एल्क्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इज़ ए यूनिट ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इज़ ए यूनिट ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड. ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है. और ये महाराष्ट्र क्या है? एल्क्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. सलेम स्टील प्लांट इज़ ए प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया was set up with the collaboration of Germany, not the Soviet Union. Hence, the statement A is wrong. Other statements mentioned in the options are correct. Question number 10 है भिलाई स्टील प्लांट is the collaborative project of the Indian government and रशिया. ठीक है. भिलाई स्टील प्लांट इज़ द कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड रशिया. भिलाई स्टील प्लांट इज़ द कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड रशिया लोकेटेड इन भिलाई, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. द भिलाई प्लांट वॉज कमीशनड ऑन 4th February 1959.
Presently, the total requirement of iron ore of Bhilai steel plant is met from Dalli Rajhara Iron Ore Complex IOC Korba and Kargali coal mines. ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट इज द collaborative project of the Indian government and Russia located in Bhilai, Durg district in Chhattisgarh. The Bhilai plant was commissioned on 4th February 1959. Presently, the total requirement of iron ore of Bhilai steel plant is met from Dalli Rajhara Iron Ore Complex IOC Korba and Kargali coal mines. Next है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है बोकारो स्टील प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ. इसका आंसर हो जाएगा रशिया. बोकारो स्टील प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशिया. बोकारो स्टील प्लांट इज द फोर्थ पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट इन इंडिया built with Soviet Russia help. Bokaro Steel Plant was started in 1965. Bokaro Steel Plant was incorporated as a limited company on 29 January 1964 and was later merged with SAIL, Steel Authority of India Limited. Bokaro Steel Plant is held as the country's first Swadeshi steel plant. ठीक है, Bokaro Steel Plant was constructed with the collaboration of Russia. Bokaro Steel Plant is held as the country's first Swadeshi steel plant. Next है क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following industries earns maximum foreign exchange for India? इसका आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. ये है 2003 का क्वेश्चन. ठीक है, उस टाइम पे ये ठीक था. ठीक है, when the question was asked in 2003, option C iron and steel was correct. Principal exports according to the economic survey 2021-2022. अगर हम जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कितना है देखते हैं. कॉमोडिटी 2021 मिलियन डॉलर में टी एंड मेड का कितना है $756 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है. जूट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंक्लूसिव्स ट्विस्ट एंड यार्न में $371 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2020-21 में. आयरन ओर का कितना हुआ है, आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट हुआ है 2020-21 में वो है 4897. ठीक है, $4897 मिलियन का. और नेक्स्ट है शुगर एंड मोलेसिस का कितना एक्सपोर्ट हुआ है 2969 मिलियन 2020-21 में. तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, इसमें जो एक्सपोर्ट हुआ है इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आयरन ओर का ही बताया गया है 4897 मिलियन का 2020-21 में. तो फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा किससे आएगा, आयरन ओर से ही आएगा क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है इन चारों में से 4897 मिलियन $. उसके बाद आयरन ओर के बाद सेकंड नंबर पर है शुगर एंड मोलेसिस, इसमें 2969 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है. उसके बाद थर्ड नंबर पर है टी एंड मीट 756 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है. फोर्थ नंबर पर है जूट मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूसिव्स ट्विस्ट एंड यार्न, ये हो जाएगा $371 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2020-21 में. तो इसका करेक्ट आंसर प्रेजेंट टाइम पर भी आयरन एंड स्टील ही होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच. इसमें बताना है भिलाई. हमने अभी पढ़ा भिलाई कहाँ पर है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में. ठीक है, भिलाई है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में. तो ऑप्शन ए ही क्या है नॉट करेक्टली मैच हो गया. बाकी क्या है, बाकी ठीक हैं. दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में. जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में. राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में. भिलाई कहाँ है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में. ठीक है, Bhilai Steel Plant is a collaborative project of Government of India and Russia located in Bhilai, Durg district of Chhattisgarh. Bhilai Steel Plant was established during the second 5-year plan. ठीक है, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year plan. Durgapur Steel Plant, West Bengal was set up with the help of United Kingdom, while Rourkela Steel Plant, Odisha was set up with German collaboration.
जमशेदपुर झारखंड स्टील प्लांट बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। जमशेदपुर झारखंड स्टील प्लांट्स बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रशिया लोकेटेड इन भिलाई दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट वॉज established during the second 5-year plan. Durgapur Steel Plant, West Bengal was set up with the help of United Kingdom, while Rourkela Steel Plant, Odisha was set up with German collaboration. Jamshedpur Jharkhand Steel Plant belongs to the private sector. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स इट्स सप्लाईज ऑफ आयरन फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा क्योंझार। राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स इट्स सप्लाईज ऑफ आयरन ओर फ्रॉम क्योंझार। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द मेन मुंबई कोलकाता। राउरकेला स्टील प्लांट is located on the main Mumbai Kolkata Southeastern Railway line in Sundargarh district, Odisha. Raurkela steel plant is located on the main Mumbai Kolkata Southeast Railway line in Sundargarh district, Odisha. The Raurkela steel plant was set up with the help of German company Krups and Dimag. It began production in 1959. It is located near limestone, dolomite and manganese ore deposits. Rourkela steel plant obtains iron ore from Mayurbhanj, Kyonjhar, Sundargarh, etc. Rourkela steel plant obtains iron ore from Mayurbhanj, Kyonjhar, Sundargarh, etc. Coal is obtained from Bokaro, Jharia and Talcher. Limestone, dolomite from बिरमित्रापुर। ठीक है, लाइमस्टोन डोलोमाइट फ्रॉम बिरमित्रापुर। मैंगनीज ओर फ्रॉम नोआमुंडी। कोकिंग कोल फ्रॉम कारगाली। ठीक है, कारगाली कोल वॉशरी। दिस प्लांट गेट्स चीपर हाइड्रो पावर फ्रॉम हीराकुंड। जो राउरकेला स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स चीपर हाइड्रो पावर फ्रॉम हीराकुंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स इट्स सप्लाईज ऑफ आयरन ओर फ्रॉम, आंसर हो जाएगा क्योंझार। राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द मेन मुंबई कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे लाइन इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। द राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मन कंपनी क्रुप्स एंड दिमाग। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट बिगेन प्रोडक्शन इन 1959. राउरकेला steel plant is located near limestone, dolomite and manganese ore deposits. Raurkela steel plant obtains iron ore from Mayurbhanj, Kyonjhar, Sundargarh, etc. इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो आयरन ओर की सप्लाई कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा कि राउरकेला स्टील प्लांट ऑब्टेन्स आयरन ओर फ्रॉम मयूरभंज, क्योंझार एंड सुंदरगढ़, etc. ठीक है, राउरकेला प्लांट ऑब्टेन्स आयरन ओर फ्रॉम मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़, etc. इसमें कि क्योंझार आंसर दिया गया है ऑप्शन में, इसीलिए क्योंझार हो जाएगा। और कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है, मयूरभंज, क्योंझार एंड सुंदरगढ़ से जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो आयरन ओर को ऑब्टेन करता है। कोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोकारो, झरिया एंड तालचर। ठीक है, कोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोकारो, झरिया एंड तालचर। लाइमस्टोन, डोलोमाइट फ्रॉम बीरमित्रापुर से लाइमस्टोन और डोलोमाइट। मैंगनीज ओर फ्रॉम नोआमुंडी। कोकिंग कोल फ्रॉम कारगाली कोल वॉशरी। राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स चीपर हाइड्रो पावर फ्रॉम हीराकुंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ग्रुप ऑफ स्टील प्लांट वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला स्टील प्लांट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला स्टील प्लांट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस।
During the second 5-year plan after independence, Rourkela steel plant in Odisha, Bhilai steel plant in Chhattisgarh, and Durgapur steel plant in West Bengal were established with the collaboration of Germany, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, भिलाई स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल वर एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। तो सबसे पहले जो राउरकेला है, राउरकेला जो पावर प्लांट है इसको बनाया गया जर्मनी के कोलैबोरेशन से। जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में उसको बनाया गया रशिया के कोलैबोरेशन से। और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में उसको बनाया गया यूनाइटेड किंगडम के कोलैबोरेशन से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राउरकेला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में उसको बनाया गया है जर्मनी के कोलैबोरेशन से। जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको बनाया गया है रशिया के कोलैबोरेशन से। और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में उसको बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम के कोलैबोरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। सबसे पहले है लासुंदरा। जो लासुंदरा है ये कहाँ पर है? लासुंदरा हॉट स्प्रिंग इज़ इन गुजरात, गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए ही क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। लासुंदरा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? लासुंदरा हॉट स्प्रिंग इज़ इन गुजरात, नॉट इन राजस्थान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें क्या है? ऑप्शन ए ही करेक्टली मैच नहीं है। तो लासुंदरा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? लासुंदरा हॉट स्प्रिंग इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट है, बाकी सभी सही हैं। एवोली, एवोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सोहाना कहाँ है? हरियाणा में। तो लासुंदरा कहाँ है? लासुंदरा हॉट स्प्रिंग है गुजरात में। एवोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सोहाना कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट इज़ लोकेटेड फार फ्रॉम कोल फील्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती। ठीक है, अमंग द अबव आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स बोकारो, दुर्गापुर एंड कुल्टी आसनसोल आर लोकेटेड नियर कोल रिजर्व्स, while भद्रावती आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट इज लोकेटेड फार फ्रॉम कोल रिजर्व्स। ठीक है, अमंग द अबव आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स बोकारो, दुर्गापुर एंड कुल्टी आसनसोल आर लोकेटेड नियर coal reserves, while Bhadravati iron and steel production plant is located far from coal reserve. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि ऐसा आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि क्या है, रॉ मटेरियल एरिया के क्लोज नहीं है। तो उसके लिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? भद्रावती ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? भद्रावती ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। द मेन रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर आयरन ओर, coal, manganese, limestone, silica, chromite, feldspar, etc. The question does not specify which raw material used in manufacturing the iron and steel are not found in the vicinity of the places given in the option to the aforesaid question. Certain raw materials are not found in the near vicinity of Durgapur and certain others nearby Salem plant. So both option C and D seems to be correct. However, the questions should be removed from evaluation considering the fact that all 4 options to answer of aforesaid question can be correct on the strength of material relied by on the commission. इसमें कहा गया है कि अगर हम देखें कि पहले इसके लिए ये स्पेसिफाई होना चाहिए था कि किस रॉ मटेरियल की कमी है। ठीक है, या किस रॉ मटेरियल के बारे में पूछा गया है, उसको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्या है, अलग अलग बेसिस हो सकता है। एक तो ये है कि जो सलेम प्लांट है उसके आसपास क्या है, कुछ
जो रॉ मटेरियल है उसमें कुछ चीज़ों की कमी है, और दूसरा है दुर्गापुर पावर प्लांट के पास भी कुछ क्या है, कुछ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है, या तो ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है दुर्गापुर, या ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन सही से नहीं पूछा गया है। इसमें ये पूछना था कि जो रॉ मटेरियल एरिया है उसमें कौन सा रॉ मटेरियल, ठीक है, कि किस चीज़ की कमी है कहाँ पर, उस बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था। कि जैसे मान लीजिए दुर्गापुर में कौन से रॉ मटेरियल की कमी है, या सालेम में कौन से रॉ मटेरियल की कमी है, तो इस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल एरिया। तो इसका आंसर है दुर्गापुर, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, सलेम भी। ठीक है, दुर्गापुर और सलेम बताया गया है कि दोनों ही जो स्टील प्लांट्स हैं आर नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल एरिया, दुर्गापुर एंड सालेम। The main raw materials used in the iron and steel industry are iron ore, coal, manganese, limestone, silica, chromite, feldspar, etc. ये सभी क्या है, मेन रॉ मटेरियल्स हैं जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में? आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन, सिलिका, क्रोमाइट, feldspar, etc. The question does not specify which raw material used in manufacturing the iron and steel are not found in the vicinity of the places given in the option to the aforesaid question. Certain raw materials are not found in the near vicinity of Durgapur and certain others nearby Salem plant. ठीक है, so both option C and D, option C is Durgapur and option D is Salem to be correct. ठीक है, seems to be correct. However, the question should be removed from evaluation considering the fact that all 4 options to answer of aforesaid question can be correct on the strength of material relied by on the commission. तो चलिए हमें इसमें नहीं पढ़ना है, बस हम देख ले रहे हैं कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। दुर्गापुर में भी कुछ जो सर्टेन रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल के जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे वो क्या हैं, कुछ दुर्गापुर में उसका क्या है, दुर्गापुर के पास नहीं है स्थित, और कुछ क्या है, जो सलेम एरिया है वहाँ पर भी कुछ रॉ मटेरियल्स की कमी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर या फिर सलेम, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी। तो यहाँ पर हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये कंप्लीट होती है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।